یہ شاعر بانی کی ترتیب کی کتاب آپ کے سامنے ہے۔ شاعر بانی کی ترتیب کی کتاب ہے۔ جو لوگ گیلری میں بیٹھے ہیں وہاں سامنے شاعر بانی کی ترتیب کی کتابیں موجود ہیں۔ پہلے صفحے سے ہم شروع کریں گے۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو، ہم دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے۔ تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بید چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے قابل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ ایک قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے عزیزو، ہم آج کے دن ایک بار پھر اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے آئے ہم تھوڑی دیر کی خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ ہم سب مل کر کہیں گے، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے۔ ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر۔ یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر۔ اپنے روح کو اس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ آمین۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح سے گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں، اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی محبت کے وسیلے سے، رحمت کے سبب سے ان سب سے جو اپنے بڑے بھائیوں، بہنوں، بچوں، دوستوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اہم خداوند کی حمد و تعظیم کریں۔ سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب، گیت نمبر 27 ہے۔ ہم
डायसिस ऑफ रायवंड के लिए, बिशप ऑफ रायवंड के लिए, तमाम खादमों के लिए, तमाम अदारों के लिए खुदावंद का रहम मांगे। ख़वातीन में से कोई भी ख़तून दुआ में रहम में कह सकती है। चंद अल्फाज में शुक्रगुजारी कीजिए आज के दिन के लिए और इस सारी हमद व तारीफ़ के लिए। खुदा की हमद व तारीफ़ करेंगे। अशाल कुरान गीतों की किताब गीत नंबर 360 360। तारीफ़ हो खुदा के बर्रे की, तारीफ़ हो खुदा के बर्रे की। आमीन। तेरे नाम संभाल करते तो बाकी बातों में नहीं मुझे अपनी बात है। हम तरापी की गलत इस तरह की दाता के लोगों को इस घड़ी के लिए इस वक्त के लिए पानी छूट के लिए दुआ कर सकता हूँ। मैं हम जिससे जो तेरे प्यार करते हुए तेरे घर में आते हैं इन सबको अपने पाप और लोग से मुक्त हटाते इनकी सारी दुख और तकलीफों परेशानियों टेंशन को जैसी माफी से नाम से जाती है। तू वैसे को भाग्य है, तू प्यार करने वाला है, तू मोहब्बत करने वाला है, तू कर्म करने वाला है, तू फजल करने वाला है। जिसे लोग उन्होंने इल्म हासिल करने के लिए गया उनको इस्लामी पावर दे, उनको समझ माने को थे अच्छे तरीके से पढ़े लिखे अच्छे नंबर पास होते हुए नाम की बात करते जो कारोबार के लिए गए उनके कारोबार करते थे रात कौमी की करे तेरे नाम को दिला करते जो कमजोरी की हालत में है उनको शासन नहीं मिलती है उनके दुख तकलीफ को दूर कर अपना शादी का उनको मतलब से समझ दे ऐसे हाथ दिमाग को फेरो करते थे बात के क्यों चले गए आखिर करते एक बार शादी करता अपनी जान अपना कर्म अपना फजल करते है तू अपना जान का बना है मांग मेरे प्यारे बेटे अपने खुदा के नाम से आमीन। आमीन।
امثال کی کتاب ہے، سلیمان کی لکھی ہوئی امثال کی کتاب، 22واں باب، پہلی آیت سے 8ویں آیت۔ امثال کی کتاب 22واں باب، پہلی آیت سے 8ویں آیت تک۔ کوئی نوجوان لڑکا پڑھے، ہے ہمت میں کسی میں؟ کوئی نوجوان لڑکا پڑھے یہ حوالہ؟ ساری شاباش شاباش، ٹھیک ہے۔ 636 صفحہ ہے، امثال 22واں باب، پہلی آیت سے 8ویں آیت۔ پھر ہم کلام مقدس میں جو دوسری تلاوت ہے وہ یعقوب کا خط ہے، دوسرا باب، 5ویں آیت سے 10ویں آیت، صفحہ نمبر 224، یعقوب کا خط ہے، دوسرا باب، 5ویں آیت سے 10ویں آیت۔ کوئی پڑھنا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ پھر ہم گیت گائیں گے 367، 367، چھو مجھے چھو خدا روح مجھے چھو۔ پھر ہم انجیل مقدس کی تلاوت سنیں گے، مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل، 7واں باب، 14ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت تک۔ آج کا یہ تیسرا حوالہ انجیل مقدس کی تلاوت، مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل، 7واں باب، 14ویں آیت سے 23ویں آیت، صفحہ نمبر 41۔ پادری صاحب آپ یہ حوالہ پڑھ لیں۔ میرے ہاتھ میں شادی کی ایک پکار ہے، گاڈ دیتے ہیں اور دعا کو میں کہ خدا آپ کو آنے والے وقت میں بھی سرفرازی دے۔ سیکٹری صاحب اگر وہ کیک تیار ہے تو پھر ابھی اس کو کاٹ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تیار ہے کیک؟ پوچھ لیں ذرا بھائی، برکت عطا یہاں ہے، وہ بھی کراچی شفٹ ہو رہے ہیں، ہم کو بھی ریکگنائز کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم سلیمان کے لیے خدا کا شکر ادا۔ سلیمان، ہم بڑے خوش ہیں، آپ کو خدا نے یہ فن دیا ہے۔ نظر بھائی آپ کے آگے سامنے کیونکہ یہ ساتھی آپ کا رہا ہے، اس کو بھی ہم بلیس کریں گے۔ شباب آ گیا، یہ وارڈ ہے، یہ کلیشیا کی طرف سے، آپ سب کی طرف سے ہے، اس لیے آگے آگے سیدھے آگے۔ اب موقع ہے کا نام لکھا آئیں جی، انتظامیہ کے لوگ آ جائیں، 2 لوگوں کو 3 کو اور بھی ساتھ لے آئیں سر۔ انتظامیہ کے لوگ آ جائیں، سامنے دیکھ بھائی صاحب، سامنے۔ آنا چاہتا نہیں سر جی۔ جس کا شوق بھی ہے اور اس کا کاروبار بھی ہے، اب آئندہ جس نے کیک بنوانا کرتے ہیں گزرے سارے دنوں کے لیے اور اس کپل کے لیے جنہوں نے یہ بڑی محنت کیا۔ ہم لگا رہے ہیں خدا اس کے نام سے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔ آپ کے ساتھ مل کے کیک کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ بچی آئے نا، بچی آئے نا، آجی آجی بنا دی۔
ਆ ਵੀ ਦਿਓ। यूँ लिखा है, नेक नाम बेकयास खजाना से और एहसान सोने चांदी से बेहतर है। अमीर और गरीब एक दूसरे से मिलते हैं, उन सब का खालिक खुदावंद ही है। होशियार बला को देखकर छुप जाता है, लेकिन नादान बढ़े चले जाते हैं और नुकसान उठाते हैं। दौलत और इज़्ज़त और हयात खुदावंद की खौफ और फरोतनी का अजर है। खजरू की राह में कांटे और फंदे हैं, जो अपनी जान की नागहानी करता है उससे दूर रहेगा। लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उसे नहीं मुड़ेगा। मालदार मस्कीन पर हुक्मरान होता है और कर्ज़ लेने वाला कर्ज़ देने वाले का नौकर है। जो बदी बोता है मुसीबत काटेगा और उसके कहर की लाठी टूट जाएगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे प्यारे भाइयों सुनो, क्या खुदावंद ने इस जहान के गरीबों को ईमान में दौलतमंद और उसी बादशाही के वारिस होने के लिए बरगज़ीदा नहीं किया जिसका उसने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है? लेकिन तुमने गरीब आदमी की बेइज्जती की। क्या दौलतमंद तुम पर जुल्म नहीं करते और वही तुम्हें अदालतों में घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वो उस बुज़ुर्ग नाम पर कुफ़र नहीं बकते जिससे तुम नामज़द हो? तो भी अगर तुम इस नविश्ता के मुताबिक के अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख, उस बादशाही शरीयत को पूरा करते हो तो अच्छा करते हो। लेकिन अगर तुम तरफदारी करते हो तो गुनाह करते हो और शरीयत तुमको कसूरवार ठहराती है। क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में ख़ता की, वो सब बातों में कसूरवार ठहरा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो।
की तिलावत मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 7वां बाब 14वीं आयत से लेके 23वीं आयत तक। मुक़द्दस मरकज़ 7 बाब 14वीं आयत से 23वीं आयत तक। और वो लोगों को फिर पास बुलाकर उनसे कहने लगा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। कोई चीज़ बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती, मगर जो चीज़ें आदमी में से निकलती हैं वही उसको नापाक करती हैं। अगर किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। और जब वो भीड़ के पास से घर में गया तो उसके शागिर्दों ने उससे इस तमसील के मानी पूछे। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे बेसमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि कोई चीज़ जो बाहर से आदमी के अंदर जाती है उसे नापाक नहीं कर सकती, इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं बल्कि पेट में जाती है और मज़बला में से निकल जाती है। ये कहकर उसने तमाम खाने की चीज़ों को पाक ठहराया। फिर उसने कहा, जो कुछ आदमी में से निकलता है वही उसको नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, हरामकारियाँ, चोरियाँ, खूनरेज़ियाँ, ज़िनाकारियाँ, लालच, बदियाँ, मकर, शहवत परस्ती, बदनज़री, बदगोई, शेखी, बेवकूफ़ी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। इशार बानी की तरतीब की किताब सफ़ा नंबर 8। हम सब अपने ईमान का इकरार करेंगे। बराए मेहरबानी इशार बानी की तरतीब की किताब इस्तेमाल किया करें। सफ़ा नंबर 8 से निकालें ताकि हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार कर सकें। गैलरी में बहुत सारे कम लोगों के हाथ में ये किताब है। वहाँ बड़ी किताबें पढ़ी हैं, मैंने खुद रखी हैं वहाँ। आप ज़रूर लें और मेरे साथ मिलकर कहें, मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा। सब बोलें। और एक खुदावंद यीशु मसीह पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल आलमों से पेशतर, अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौजूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीला से कुल चीज़ें बनी। वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया और उल कुद्स की कुदरत से कम्मारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पैंतूस पलतूस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामूजब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दहरी तरह बैठा है। जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत ख़त्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रुल कुद्स पर जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादर है। उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तश व ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आसमानी बाप, हम इस वक्त सब बड़ी हलीमी के साथ तेरे आगे झुक कर तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे रहम के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए कि तूने हम सबको ज़िंदा रखा और शुक्रगुजारी के लिए अपने घर में आज सुबह इकट्ठा किया। एक के ख़ानदान, बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक हम सब तेरा शुक्र अदा करते और दुआ करते हैं। इस वक्त तो हमें अपने पाकरू की रहनुमाई अता फरमा ताकि हम तेरी इन बातों को समझ सकें और इस जहान में, इस दुनिया में, इस समाज में रहते हुए अपनी ज़िंदगियाँ तेरे खौफ में रहकर बसर करें और हमारे वसीले से दूसरे लोग बरकत पाएँ। अपने खादम के मुँह में अपना कलाम दे। खुदा बाप, बेटे और उनके नाम से। जमायत बैठ जाए।
खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करता हूँ। आप सबको वेलकम करता हूँ खुदा उनके घर में कि आप लोग वक्त निकाल कर आए हैं। मेरी कोशिश होती है कि जब आप संडे वाले दिन चर्च में आते हैं तो फिर आपको जल्दी फारिग किया जाए ताकि आप घर में जाके अपने सारे काम भी कर सकें, छुट्टी का दिन है। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें कि जब आप खुदा के घर में आते हैं तो बहुत सारी परेशानियाँ आपकी ख़त्म हो जाती हैं। मैं भी ऐसे हूँ, आपके साथ हूँ। चर्च में, खुदा के घर में हम दुआ करने से, कलाम पढ़ने से, सुनने और सुनाने से तसल्ली मिलती है और मैं और आप ताज़गी हासिल कर लेते हैं, रूह की ताज़गी। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जवान यहाँ पे बैठे हैं जो एडमिशन ले रहे हैं मुख्तलिफ़ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में। जहाँ मेरा हाथ पड़ता है मैं ज़रूर फ़ोन करके उनको कहता हूँ कि ये हमारे बच्चे हैं, वो हमारे साथ तावन भी करते हैं। अभी रसल आया नहीं आज। रसल बेशक आँखों से नहीं देख सकता लेकिन वो हर चीज़ को समझता है। एमफिल में दाखिला मिला उसको, जीसी में, कोविड कॉलेज यूनिवर्सिटी है वहाँ पे। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी। कई दफ़ा हम समझते हैं कि हम आँखों से देख रहे हैं, हमें सारा पता है, लेकिन जिन आँखों से ऐसे लोग देखते हैं वहाँ मैं और आप भी नहीं देख सकते। लेकिन वो मेरी और आपकी हरकत से, मेरे और आपके रवैये से बहुत सीखते हैं। इसलिए हम आज सुलेमान को अप्रिशिएट करते हैं, इसके लिए दुआ करते हैं, क्योंकि जो कलाम का हिस्सा है उसमें 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। इससे पहले कि मैं वो तीनों चीज़ों का ज़िक्र करूं, आने वाले वक्त के लिए उन बच्चों से ख़ास कहना चाहता हूं जो चर्च की खिदमत में इन्वॉल्व नहीं हैं, जिनके पास फ़न तो है लेकिन इस्तेमाल नहीं होता, आर्ट तो है इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन उन बच्चों के लिए ये नौजवान जो बच्चे हैं ये मॉडल है। इसलिए मुसलमान हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। और सैमुएल का नाम बिब्लिकली आप जानते हैं कि सैमुएल वो खुदा का खादम जिसके साथ डायरेक्ट खुदा ने खिदमत और कलाम किया और उसे बहुत सरफराजी दी। तो कि सैम आप बाकायदगी के साथ, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत भी है, शबाज कुछ बताया इसको कि ज़रूरत है हमारी, ठीक है। आज ही हम आपको ब्लेस करना चाहते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। तो चौथी आयत में देख रहा हूँ जिसमें 3 बातें हैं जो आपने देखनी हैं कि किस शख्स की ख्वाहिश है, किसकी नहीं है। मैंने आपसे सवाल करना है, हवाला निकाल लें। दौलत, इज़्ज़त और हयात। हयात का मतलब है ज़िंदगी। तीनों चीज़ें। गैलरी में बैठे छोटे बच्चे, वालिदैन को छोटे बच्चों पे बड़ी उम्मीदें होती हैं। बच्चे अच्छी सोसाइटी में चले जाएं, अच्छे माहौल में चले जाएं, वालिदैन की फरमाबरदारी करें तो आने वाले वक्त में ज़िंदगी में उन्हें ये चीज़ें मिल जाती हैं। फिर दोबारा दोहराना चाहता हूँ, कौन दौलत का शौकीन नहीं है? मैं और आप, हम सब दौलत चाहते हैं। दौलत, इज़्ज़त खुदा की तरफ से मिलती हैं ये चीज़ें। ज़िंदगी, हयात, इन तीनों बातों को, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं, इंसानी ज़िंदगी का ख़ास हिस्सा है। इनके लिए इंसान बड़ी तवज्जो करता है। दौलत ये भी खुदा की तरफ से है, इज़्ज़त खुदा की तरफ से, ज़िंदगी खुदा के हाथ में है। अहम चीज़ें हैं, लेकिन कौन ये चीज़ें हासिल कर सकता है? इसी हवाले में लिखा है जो होशियार है, तीसरी आयत, ऊपर वाली आयत, होशियार बला को देखकर छुप जाता है, लेकिन नादान बड़े चले जाते और नुकसान उठाते हैं। जो नादान शख्स आगे बढ़ता है उसको पता है कि से बला आ रही है,
اس کو پتہ ہے کہ حالات خراب ہیں، اس کو پتہ لڑائی ہو رہی ہے، اس کو پتہ فائرنگ ہو رہی ہے. میں موجودہ حالات کی بات کر رہا ہوں. محلے میں تماشا دیکھنے کے لیے کہیں چلے جاتے ہیں. بلا کو دیکھ کر جو عقل مند شخص ہے، جو دنا شخص ہے، جو حکمت رکھتا ہے، وہ دوسری سائڈ پہ چلا جاتا ہے، وہ چھپ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے. لیکن جو بے وقوف ہے، جو احمق ہے، نادان ہے، جس کی تربیت ٹھیک نہیں ہے، وہ آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھا جاتا ہے اور پھر نقصان اٹھاتا ہے. نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، کبھی حالات ایسے ہوں، مشکل ہو، آپ کو سمجھ آ رہی ہو ٹھیک نہیں ہے، آپ اس میں مت کودیں، سائڈ پہ ہو جائیں، نادان نہ بنیں. اگر آپ عزت، دولت، حیات، زندگی، شہرت چاہتے ہیں تو پھر آپ داناؤں کی مانند چلیں. کاج رہو، 5ویں آیت، کاج رہو. کبھی کاج رہو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا کبھی؟ کاج رہو کا مطلب آتا ہے، ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بولیں بولیں. کبھی کسی نے اپنی زندگی میں سانپ دیکھا؟ سیدھا چلتا ہے وہ؟ کیسے چلتا ہے؟ ہاں، یہاں پہ لکھا ہے کاج رو کی راہ میں کانٹے ہیں اور پھندے ہیں، جو اپنی جان کی نگہبانی کرتا ہے ان سے دور رہے گا. ایسے نوجوان جو غلط راہ پہ چل رہے ہیں ان کی سوسائٹی میں نہ جائیں. دی مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. پھر والدین کہتے ہیں نہیں وہ بندہ ہی ہونا، نہ دوست اس ہوئے انہوں نہ کھاندہ پیندہ نہیں. آپ کو کیا پتہ نہیں کھاتا پیتا بھائی، آپ تو گھر بیٹھے ہوتے ہیں. اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کاجروں کی راہ میں کانٹے ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں. اس لیے وہ والدین کے لیے بھی پریشانی کا سبب بن جاتی ہیں. لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے، اگر تو آپ نے صحیح تربیت کر لی اور اس نے تربیت کو قبول کر لیا تو پھر وہ زندگی بھر اس سے نہیں مڑے گا. وہ اچھے طریقے سے چلتا رہے گا، راستہ بازی سے چلتا رہے گا، خوش اخلاقی کے ساتھ چلتا رہے. یہ نہیں کہ اس سے گناہ نہیں ہوں گے، غلطیاں نہیں ہوں گی، لیکن آپ اس کو یہ نہ کہتے ہیں یہ نہ کر، یہ نہ کر، یہ نہ کر. تربیت کریں اس کی، وہ خدا کے خوف پہ رہ کر آگے بڑھے. آج کی دنیا میں کبھی کبھار یہ جو پنجابی محاورے ہوتے تھے آج کل بہت کم بولے جاتے ہیں، بچوں کو سمجھ بھی نہیں آتی، کیونکہ گھر میں اگر وہ پنجابی بولے تو مائیں تھپڑ مارتی ہیں کہ بھئی اردو نہیں بول رہا تو. اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ اپنی جو مدر ٹنگ ہے، ماں کی زبان جو ہے، جو ہماری اپنی زبان ہے، وہ ہم بھولتے جا رہے ہیں. میری ماں بڑی سادہ تھی، اور یہ آیت میں جب پڑھی میں نے تو مجھے ان کا ایک محاورہ یاد آیا، کیونکہ یہاں لکھا ہے لڑکی کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر اس سے وہ نہیں مڑے گا. یہ پازیٹیو بات ہے. لیکن میری ماں بہت دفعہ یہ ہمیں سناتی تھی کہ دورہ دیکھا کبھی کسی نے جس میں کبوتروں کو پانی شانی دے دیتے ہیں؟ دورہ، یہ جو بھنگیلے ہو گئے ہیں اس میں بھنگ بھی ہے نا، سردائی بھی کرتے ہیں، وہ ہے. وہ میری ماں کہتی دورے تے مڈاں دے بگڑے کدی نہیں سورے. سادہ بات، سادگی کے ساتھ بتایا کہ دورے مڈاں دے بگڑے. جو بچپن سے برے کام کر رہے ہیں وہ کبھی نہیں سنور سکتے، تو اس لیے بچپن میں ہی آپ ان کو ایسی جگہ پہ جانے سے روکے، منع کریں، اور بچے بھی بنا ہو جائیں، کیونکہ پھر وہ بوڑھے ہو کر بھی اس سے نہیں مڑیں گے. لیکن اچھی تربیت کریں گے تو پھر وہ بوڑھے ہو کر بھی اس سے اچھے کاموں سے نہیں مڑیں گے. یہ دونوں بچے جو اوپر آ گئے ہیں نا، یہ آپ کے لیے بھی ماڈل ہے. یہ نہیں کہ یہ شرارت نہیں کریں گے، شرارت کرنی چاہیے انہیں، ان کی زندگی کا حصہ ہے. آپ ان سے یہ توقع نہ کریں گے یہ شرارت نہیں کریں گے.
یہ لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، بچوں کے ساتھ کھیلیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن خدا کی راہ پہ جائیں گے، خدمت کی طرف جائیں گے۔ اس لیے میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، ان آیتوں کو گھر میں جا کے ضرور پڑھیں۔ دولت، عزت، حیات، زندگی، سب کچھ خدا کے خوف میں رہ کر آپ کو ملتی ہے اگر آپ فروتنی کے ساتھ خداوند کی حضوری میں چلتے رہیں۔ 9ویں آیت میرے لیے، آپ کے لیے سنیں بچے، نوجوان سنیں، جو نیک نظر ہے، جو نیکی کرنے والا ہے، جسے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کو، اس عورت کو، اس مرد کو، اس بچے کو ضرورت ہے۔ آپ کی جو نظر ہے نا، دیکھنے کی آنکھ، یہ ٹھیک ہونی چاہیے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا، اوے میں دے اڑتی چڑیا کے، آپ میں کوئی بیٹھا ہے ایسا، یہ لوگ کہتے ہیں میں بڑی شے ہوں، یا ہم کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص اتنا ہوشیار ہے کہ وہ اڑتی چڑیا کے۔ آپ کی جو نظر ہے وہ اتنی تیز ہونی چاہیے کہ آپ کو صحیح تعلیم اور غلط تعلیم کا پتہ چل جانا چاہیے۔ شخص کھڑا ہو جو بولنے والا ہے، جب وہ سٹارٹ کرے تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ آپ کی نظر کتنی تیز ہے۔ اگر آپ نہیں دیکھتے تو پھر نظر چیک کرانی چاہیے نا۔ ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا ان کو والی دکان پہ، بھلا کیا لکھا تھا؟ اگر آپ گھر میں اپنی بیوی کو آنکھیں نہیں نہ دکھا سکتے تو ہمیں دکھائیں، ہم آپ کی نظر ٹھیک کریں گے، آپ کو اینک دیں گے۔ اگر آپ اپنی بیوی کو اپنی آنکھیں نہیں دکھا سکتے تو ہمیں دکھائیں، ہمیں آ کر دکھائیں، ہم آپ کا علاج کریں گے۔ جو نیک نظر ہے برکت پائے گا، بڑی بات یہ ہے وہ برکت پائے گا کیونکہ وہ اپنی روٹی میں مسکینوں کو دیتا ہے۔ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ شخص ضرورت مند ہے۔ آج کے دور میں ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں، یہ ہمارا معاشرہ عقل مندوں سے بھرا ہوا ہے۔ عقل مند بڑے ہیں، درد مند نہیں ہیں، وہ خود غرض ہیں۔ اس لیے خدا کے کلام میں خداوند یسوع مسیح کے جو الفاظ ہیں، اور پادی صاحب نے جو حوالہ پڑھا وہ نکالیں ذرا، مرکز کی انجیل، شاباش، جلدی کریں گے ہم تاکہ آپ لوگ جا کے اپنے اپنے کام بھی کر سکیں۔ نظرنامہ سے مقدس مرکز کا انجیلی بیان، چند باتیں میں وہاں سے لوں گا کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں جو میرے لیے اور آپ کے لیے برکت کا سبب ٹھہریں گی۔ کلام میں لکھا ہے 7ویں آیت 14ویں آیت، 7ویں باب کی 14ویں آیت، اور وہ لوگوں کو پھر پاس بلا کر ان سے کہنے لگا، یسوع مسیح کی بات ہے، لوگوں سے انہوں نے ایک ہی بات کی، میری سنو اور سمجھو۔ کس کی سنو؟ کس کی؟ یسوع نے کہا کہ میری سنو اور سمجھو، لیکن میں اور آپ ایسا نہیں کرتے۔ جس کی سننی ہوتی ہے اس کی نہیں سنتے، جو غلط تعلیم دے رہا ہوتا ہے اس کی سنتے ہیں، اس کو پیر بھی مان لیتے ہیں، اس کی پرستش بھی کرتے ہیں، اس کو استاد بھی مان لیتے ہیں، وہ غلط ہی سائڈ پہ آپ کو لے کے جائے۔ اس لیے آپ کی نظریں ٹھیک ہونی چاہیے، پہچان ہونی چاہیے کہ یہ شخص، یہ عورت، یہ مرد، یہ نوجوان، یہ کیسا ہے، یہ کون سی تعلیم مجھے دے گا، کس راستے پر لے جائے گا، کہیں میری بےزتی تو نہیں کروائے گا۔ تو یسوع مسیح نے کہا ہے میری سنیں۔ اب لوگ یہاں آ کے سننے کی بجائے کہیں اور جا کے سنتے ہیں، پھر وہ خراب ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں وہاں بہت غلطی کی تھی۔ اس وقت تک آپ کے ہاتھ سے سارا کچھ نکل چکا ہوتا ہے۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے میری سنو سمجھو، کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی۔ بات کو سمجھیں، کوئی بھی چیز باہر سے آ کر انسان کے اندر کو ناپاک نہیں کر سکتی۔ یہ جو ہر بندہ، ہر شخص ادھر گھوما پھرتا نا کہ جی تمہیں باہر دسایا بدرو ہے تاڑے اندر، تاڑے گھر میں کچھ کیتا ہے کسی نے، سب نالائق لوگ ہیں، وہ انٹرینڈ لوگ ہیں، غلط کہتے ہیں آپ کو، غلط تعلیم دیتے ہیں آپ کو، پریشان کرتے ہیں آپ کو، مایوس کرتے ہیں آپ کو۔ یسوع مسیح نے کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا۔ جب آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں مایوسی لے کے نہ جائیں، پریشان ہو کے نہ جائیں۔ میری سنو
मेरी समझो कोई चीज़ बाहर से आकर किसी आदमी को, किसी औरत को, किसी शख्स को, किसी नौजवान को नापाक नहीं कर सकती, मगर जो चीज़ें आदमी से निकलती हैं, आदमी में से निकलती हैं, इंसान में से निकलती हैं, वही उसको नापाक करती हैं। और अगर किसी के सुनने के कान हो तो ये जो आजकल कहते हैं ना जी, तवीज़ पे न दिनों इस यहाँ से भी निकाल लेते हैं, यहाँ से भी निकाल लेते हैं। और भाई मेरे बहनों, आप बड़ी जल्दी पीछे लग जाती हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, वो गलत हैं, वो गलत लोग हैं। आप क्यों उनके पीछे जाते हैं? आपको क्यों अपने ऊपर शक है कि मैंने कुछ कीता है, किसने तवीज़ ने? क्या होता है तवीज़? कुछ भी नहीं होता। ये आपकी सोच है, ये आपकी पहचानने की बात है। नथिंग, कुछ नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, झूठ है ये। मैं आपको अला नहीं कहता हूँ। अगर कोई कहे कि नहीं मेरे साथ आके बैठ जाए, मैं उसको साबित करके देता हूँ कलाम में से। ये सारी चीज़ें मायूसी फैलाती हैं, परेशान कर देती हैं, आपके दरमियान नफाक डाल देती हैं, आपको एक दूसरे के साथ लड़ा देती हैं। फिर उन्होंने क्या क्या किन्ने कीता है? तो तेरी दरानी ने कीता है, तेरी जिठानी ने कीता है। बेवकूफ़ी की बातें हैं, कम अकली की बातें हैं, नालायकी की बातें हैं, गलत बातें हैं, झूठ हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है। मेरी सुनो, समझो, कोई भी चीज़ बाहर से आकर आपको नापाक नहीं करती। अगर किसी के सुनने के कान हैं तो वो सुन ले। और जब वो भीड़ के पास से घर में गया, कौन? यीशु। उसके शागिर्दों ने उससे इस तमसील के मानी पूछे। साथ साथ रहते थे यीशु मसीह के। उन्होंने कहा खुदावंद यीशु मसीह, ये बात तो हमें बता, समझ नहीं आई, ये है क्या चीज़? तो उसने उनसे कहा, तुम भी ऐसे बेसमझ हो, तुम भी ऐसे। आप समझदार लोग बैठे हुए हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ना समझ ना बने, बेसमझ ना बने। क्या तुम नहीं समझते कि कोई चीज़ जो बाहर से आदमी के अंदर जाती है उसे नापाक नहीं कर सकती? क्या करेगी? इसलिए कि वो उसके दिल में से नहीं बल्कि पेट में जाती है, पर मज़बला में निकल जाती है। ये क्या कर उसने तमाम खाने की चीज़ों को पाक ठहरा दिया। चीन के लोगों का पता ना आपको? चीन के लोग, जापान के लोग ये खुदा को नहीं मानते। किसको नहीं मानते? वो सारा कुछ उनका साइंस ही है, तो वो सारा कुछ खा भी जाते हैं। तो हमारे पाकिस्तानी लोग बड़े अच्छे हैं। बंदा गया, उसने बिज़नेस कर, वो बिज़नेसमैन था, उसने कहा कि इसमें ना तीसरे नंबर की नहीं घटिया चीज़ बनवा रहा था। उसने कहा कि अपनी ये जहाँ पे मोहर लगा देंगे मेड इन जापान। हल्की चीज़ थी। खाना खाने की बारी आई ना, तो कहता कि मेरे लिए ना हलाल खाना मंगवाना। कौन सा खाना? उसने कहा ये काम हलाल करा रहा है मेरे से, ये काम हलाल है, ये हराम है। खाना हराम नहीं है। ना समझ लो जिसको आप समझते हैं। लोग उनको बग़ैर मज़हब के समझते हैं। हाँ, उनका कोई मज़हब नहीं है, लेकिन एक बात है, महज़ब बड़े हैं। वो शास्त्री से चलते हैं, इंसान की इज़्ज़त करते हैं, इंसान की कदर करते हैं, कानून को नहीं तोड़ते। इशारे पे रुक जाते हैं, रात भी हो, लेकिन महज़ब है और हम मजहबी हैं। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, आपको ये नहीं पता जो चीज़ अंदर जाती है वो नापाक नहीं करती? फिर उसने कहा, जो कुछ आदमी में से निकलता है वही उसको नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं। लड़की की इस राह में तरबियत कर जिस पर उसने जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे। अब अगली बात सुन लें, सब बड़े छोटे, मैं खुद, मेरे लिए, आपके लिए ये बातें, ये मसीह के अल्फाज हैं। शागिर्दों को समझाया, सुनो और समझो, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं। नंबर 1, हरामकारियाँ, चोरियाँ, खूनरेज़ियाँ, ज़नाकारियाँ, लालच, बदियाँ, मकर, शहवत परस्ती, बद नज़री, बदगोई,
शेखी, बेवकूफ़ी, इनमें से कौन सी बात है जो पाकिस्तान में नहीं है? इनमें से कौन सी बात है जो मोहल्लों में नहीं है? उनसी कौन सी बातें हैं जो हम में है नहीं है? सारी की सारी बातें हमारी हैं। आज सुन लें, ये जाके घर में आपने पढ़ना है और इस पे गौर करना है, अपने आप पे सवाल करना है कि मेरे अंदर कौन सी चीज़ है, उसको ख़त्म कर दें। यही नसीहत है। फिर पढ़ना चाहता हूँ, गौर से सुन लें। ये यूसुफ सी के अल्फाज हैं, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं। इसलिए आखिरी दुआ में जब मैं कलमात बरकत खुदा उनकी मर्ज़ी से देता हूँ तो कहता हूँ, दिल और ख़्यालों को महफूज रखा है मेरे खुदा। कहता ना, दिल और ख़्याल यही ख़राब करते हैं। बुरे ख्याल, हरामकारियाँ, चोरियाँ, खूनरेज़ियाँ, ज़नाकारियाँ, लालच, बदियाँ, मकर बड़ा है, शहवत परस्ती, बद नज़री बेबा, बदगोई। और हम उससे बड़े खुश होते हैं जो बदगोई कर रहा होता है ना, किसी की सुन रहे होते हैं, उसको ये नहीं पता कि आगे जाके वो आपकी भी बदगोई कर रहा है। ये आपको नहीं समझ आती, ये बेवकूफ़ी है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे सामने, जब वो आपकी बदगोई कर रहा होता है, गलत बातें आपके बारे में, बुरी बातें मेरे साथ आपकी शेयर कर रहा होता है, तो आगे जाके वो मेरे बारे में कह रहा होता है तीसरे बंदे को, और फिर वो आगे चौथे को कह रही होती है या कह रहा होता है। हम सारे ऐसे हैं, बदगोई वाले शख्स को बड़ा पसंद करते हैं हम। कहते ये सही है, ये तो महफिल च ना हो तो महफिल शुरू होने की नहीं होती, इसलिए कि वो बदगोई करती है या करता है। मैं भी ऐसा ही हूँ, इंसान ऐसा है। हमने इन बातों को छोड़ना। बदगोई, शेखी बड़ी, मैं बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं। घर में तो दूसरी दफ़ा साल नहीं मिलता आपको, आप कहते हैं कि मैं बड़ी शय हूँ बाहर जाके, घर में तो आपकी इज्जत कोई नहीं है। शेखी बड़ी, मैं बड़ी चीज़ हूँ, तो मैं उसको क्या समझता हूँ? ये यीशु मसीह कह रहे हैं इन बातों को छोड़ दें। ये नापाक करती हैं आपको। मकर, शहवत परस्ती, बद नज़री, बदगोई, शेखी, बेवकूफ़ी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर इंसान को नापाक। हुण दसो तुसी नापाक होना चाहिए कि पाक? सुने करें बात, पाक बनना है। शहद की मक्खी और आम मक्खी में यही फ़र्क है। मैं एक दिन आपको बता रहा था। और जो मक्खी है ना, आम मक्खी, इसकी आंखें बहुत ज़्यादा होती हैं। रेडियो में मैंने सुना निज़ामुद्दीन से, बड़ी पुरानी बात है, पुराने लोगों को पता है निज़ामुद्दीन, रेडियो में आता था, कहता है इतनी आंखें उसकी होती हैं, इतनी ज़्यादा आंखें। छोड़ो यार, इतनी आंखें होने के बावजूद कहाँ बैठती है? गंद पे बैठती है, इतनी आंखें। लेकिन शहद की मक्खी, कम आंखें रखने वाली, कहाँ बैठेगी? फूलों पे बैठेगी, अच्छी चीज़ों पे बैठेगी और शहद पैदा करेगी, अच्छी बातें करेगी। आप में और मुझ में यही फ़र्क होना चाहिए। दूसरों से गंदी मक्खी नहीं बनना कि गंद पे बैठे और गंदी जाके फैलाएं और लोगों को बीमार करें, परेशान करें। आपने कौन सी मक्खी बनना भाई? शहद की मक्खी। अच्छी चीज़ों की तरफ जाएं, अच्छे फूलों की तरफ जाएं, मिठास पैदा करें। तो आपकी ज़ुबान से, आपकी गुफ्तगू से मिठास पैदा हो। और यही बात खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं। और यही चीज़ें खुदा का बंदा याकूब मुझे और आपको चंद ही बातों में समझा रहा है कि मुझे और आपको इस दुनिया में रहते हुए क्या करना है। याकूब का ख़त, दूसरा बाब, 5वीं आयत से 10वीं आयत है। मैं 1-2 आयत सिर्फ लूँगा जो आपके लिए ज़रूरी है और मेरे लिए ज़रूरी है। मैं किसी की बात तो करते नहीं, मैं कहता हूँ ये मेरे लिए ज़रूरी है, और फिर मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है वो आपके लिए ज़रूरी है। इसलिए आप इन बातों पे ज़रूर गौर करें। बड़ी सादा सी बात उसने यहाँ पे कर दी है। मेरे प्यारों, मेरे भाइयों बहनों, बच्चों, दोस्तों, सुनो जो खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा। सुनो, क्या खुदा ने इस जहान के गरीबों को ईमान में दौलतमंद और उस बादशाही के वारिस होने के लिए बरगज़ीदा नहीं किया जिसका उसने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया? मेन ट्रुथ, वर्क सी बात। लेकिन तुमने गरीब आदमी की बेइज्जती की। क्या दौलतमंद तुम पर जुल्म नहीं करते और वही तुम्हें अदालतों में घसीट कर नहीं लेके जाते? जो बड़े लोग हैं हम उनको सलाम करते हैं,
ان کی پرستش کرتے ہیں ہم، ان کو کہتے ہیں یہ بڑی چیز ہے، وہی ہم پہ مقدمے کرتے ہیں، وہی ہم کو گھسیٹ کے لے جاتے ہیں۔ اس کی میں سادہ مثال دیتا ہوں، زیادہ نہیں آج بات کرتا، اس پہ پھر بات کروں گا۔ سادہ مثال سن لیں، رشتہ داروں میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ جو غریب رشتہ دار ہوتا ہے نا، ذرا کمزور ہوتا ہے، سارے سن لیں، باجیاں سن لیں، ذرا گھر چ لڑائی نہ پانا، اینو نہیں بلانا، اینو نہیں بلانا۔ جو رشتہ دار ذرا باڑا ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، آپ اس کو شادیوں میں نہیں بلاتے، آپ ان کے گھر کے پروگراموں میں نہیں بلاتے، لیکن خدا نہ کریں آپ کے گھر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے نا، سب سے پہلے وہ آتے ہیں۔ جو غریب ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس آئیں گے، دکھ کا اظہار کرنے کے لیے، محبت کا اظہار کرنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے۔ اور جن کو آپ بڑی قدر دیتے ہیں، جن کی آپ بڑی عزت کرتے ہیں، وہ آپ سے ٹائم پوچھیں گے، کتنے بجے جنازہ ہے، قبرستان کدھر پہنچنا ہے، ہم ڈائریکٹ ادھر ہی چلے جائیں گے، اور ادھر دفن کرتے ہیں اور ادھر سے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ یہی چیز ہے، طرفداری نہ کریں، انسان کو انسان سمجھیں، انسانیت کی قدر کریں، عزت اور احترام کریں، پھر دیکھیں آپ کو دولت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، حیات بھی ملے گی، زندگی بھی ملے گی۔ میں اور آپ ان تینوں چیزوں کے مشتاق ہیں۔ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، ہمارے بچوں کے پاس، ہمارے خاندان کے پاس، ہمارے پاس عزت، دولت اور شہرت اور زندگی ہو۔ میری یہ دعا ہے کہ یہ چیزیں آپ سب کو ملیں، لیکن تب ملے گی جب آپ خدا کے خوف میں رہ کر زندگی بسر کریں گے۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
जो कि हम नालायक हैं, फिर भी हम उसी के वसीले से तेरे पास आते हैं, बड़ी आजिज़ी इनकिसारी हलीमी फ़रोतनी के साथ उससे मिन्नत करते हैं। तो हम सबको भी अपने ज़िक्र कबूल फरमा, इन नजरानों को, हदियों को, शुक्रगुजारी को अपने ज़िक्र कबूल फरमा, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। सब चीज़ें तेरी तरफ से मिलती हैं, तेरी ही चीज़ों में से हम तुझे लौटाते हैं। तो अपना हाथ बड़ा सदी की तकदीस कर, देने वाले की बरकत है, तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए, ताकि हमारे लिए तेरा फजल और तेरा खुद बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से आई सूर्य की में बात सबकी रसाई होती जाए। खुदावन तुम्हारे साथ हो। हम अपने दिल लाल में बाला पर लगाएं, हम अपने खुदा का शुक्र करें जो नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ क़ुद्दूस और मुक़द्दस बाप, कादिर मतलब और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, डायसिस ऑफ रायबन के लिए, बिशप ऑफ रायबन के लिए, तमाम खादमों के लिए, तमाम मसीही इदारों के लिए, हाज़िर जमायत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस वास्ते फ़रिश्तों और मुकर्रब फ़रिश्तों और कुल आसमानी ग्रोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम ताज़ीम करते हैं, हमेशा तेरी सताइश करते हैं। सब बोले खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर है। ऐ खुदावंद ताला, तेरा ही जलाल हो। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आया है और आने वाला भी है, आने वाला पर होशना। वाकई क़ुद्दूस, वाकई मुबारक है तू, आसमानी बाप, जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदा देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी काबिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, सैलाब ज़दगान पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, अपनी पूरी कलीसिया पर रहम कर, उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है, तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी इसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे झूठने का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतजार करते हैं। ऐ मसीह, तेरा ही जलाल हो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और हमें सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाह को और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए ऐ करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएँ और उसका खून इस वजह से पिएँ कि हमारे गुनाह लुदा जिस्म और रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ़ किए जाएँ, और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे,
तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ए खुदा के बर्रे यीशु मसीह तू जो हम सब का और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ए खुदा के बर्रे यीशु मसीह तू जो हम सब का और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ हम भी एक दूसरे को इत्मीनान की दुआ दे और कहें, खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदावंद आपको बरकत दे, आप ज़रूर एक दूसरे के लिए इत्मीनान का सबब बने। मेरी ये दुआ है कि आज जब आप सब लोग खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हों, रूहानी ताज़गी पाएँ, खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर मुतलक खुदा पाक बेटे और उसकी बरकत हम सब पर और हम सब के तमाम अज़ीज़-ओ-कार, रिश्तेदार, बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ, गमज़दा लोगों के साथ, सलामज़दगान के साथ, जंगज़दा लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। और आप पर मेहरबान रहे। खुदा अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो करे और आपको सलामती बख्शे। जहाँ कहीं भी जाए खुदा तेरे साथ साथ रहे। खुदा रास्ते में आपकी हिफाजत निगरानी करे, वहाँ का मौसम, वहाँ का माहौल आपके लिए साजगार हो, और खुदा तेरी आमद में हमेशा आपके साथ रहे, और आने वाले वक्त में ठहरो खुश न दे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से आमीन।